السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ تلنگانہ اسمبلی کے پہلے ہی روز ایوان میں خوب ہنگامہ۔ BRS MLA جگدیش ریڈی نے کہا یہ ایوان سب کا ہے، نہ کہ صرف اسپیکر کا گھر۔ کانگریس نے مچایا ہنگامہ۔ اسمبلی میں زبردست ہنگامہ، جگدیش ریڈی کا اسپیکر پر جانبداری کا الزام۔ اسپیکر کے خلاف ریمارکس پر BRS رکن اسمبلی معطل۔ BRS ارکان اسمبلی اسپیکر سے کرے معذرت خواہی۔ BRS سپریمو KCR کی ہدایت، پرامن انداز میں اسمبلی کی کارروائی چلانے کی حمایت کی۔ یہ حد بندی نہیں بلکہ جنوبی ریاستوں کے لیے ایک حد بندی کو لے کر CM ریونت ریڈی کا ریمارک۔ حد بندی کے خلاف تمل CM اسٹالن کی میٹنگ میں شرکت کا کیا اعلان۔ راجہ سنگھ نے خود اپنے ہی پارٹی کے سینئر قائدین کو بنایا نشانہ۔ BJP سینئر قائدین پر حکومتوں کے ساتھ خفیہ تعلقات کا لگایا الزام۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ خوب ہنگامہ آرائی کے ساتھ آج سے تلنگانہ اسمبلی کی کارروائی کا آغاز ہوا ہے۔ ایوان میں بات کرتے ہوئے BRS MLA جگدیش ریڈی نے استفسار کیا کہ فلاحی اسکیمات جیسے ریاست میں ریتو بھروسہ کا نفاذ، فصلوں کی قرضوں کی معافی کا وعدہ اور حکمران کانگریس حکومت نے تلنگانہ کے کسانوں کو دھوکہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ BRS MLA نے مزید آگے کہتے ہوئے اسپیکر سے کہا تمام ارکان کو ایوان میں مساوی حق حاصل ہے اور یہ سب کا ایوان ہے، نہ کہ اسپیکر کا اپنا گھر۔ جگدیش ریڈی کے اس ریمارک پر ایوان میں خوب ہنگامہ ہوا۔ ہنگامے سے پہلے سوریا پیٹ BRS MLA و سابق وزیر جگدیش ریڈی نے اسمبلی اسپیکر گڈم پرساد پر زور دیا کہ وہ بانسواڑہ MLA پوچارام سرینواس ریڈی اور جگتیال MLA سنجے کمار کو فوری طور پر نااہل قرار دے، کیونکہ وہ BRS کے ٹکٹ پر جیتنے کے بعد حکمران کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے تھے۔ అధ్యక్ష ఈ సభ మన అందరిది, ఈ సభ మా అందరికి సమానమైన హక్కులు ఉన్నాయి। మా అందరి తరఫున మీరు పెద్ద మనిషి మాత్రమే ఆడ కూర్చున్నారు తప్ప ఈ సభ మీ సొంతం కూడా కాదు। ఈ విషయం అధ్యక్ష 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 వారు మాట్లాడిన ప్రతి పదం వెనుకకు తీసుకోవాల్సిందే। ఈ రోజు చైర్ని దూషించిన సందర్భంలో వారు క్షమాపణ చెప్పాల్సింది అధ్యక్ష, క్షమాపణ చెప్పాల్సింది అధ్యక్ష, అహంకారంతో మాట్లాడకూడదు అధ్యక్ష, క్షమాపణ చెప్పాల్సింది అధ్యక్ష, క్షమాపణ చెప్పాల్సిందే। ఈ రోజు చైర్ పైన దూషణలు చేస్తూ బెదిరించే కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ రోజు వారు చేసిన మాటలు విషయంలో తప్పకుండా జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు వారి పార్టీ పూర్తి స్థాయిలో క్షమాపణ చెప్పాల్సింది అధ్యక్ష। تلنگانہ اسمبلی میں آج زبردست ہنگامہ آرائی کے دوران اسپیکر نے BRS کے رکن اسمبلی جگدیش ریڈی کو سارے بجٹ سیشن تک کے لیے ایوان سے معطل کر دیا۔ ہنگامہ آرائی اس وقت شروع ہوئی تھی جب جگدیش ریڈی نے اسپیکر پر جانبدار برتنے کا الزام عائد کیا اور BRS ارکان کو ایوان میں اظہار خیال کا موقع دینے پر زور دیا۔ جگدیش ریڈی کے ساتھ BRS کے دوسرے ارکان نے بھی پارٹی ارکان اسمبلی کو ایوان میں اظہار خیال کا موقع دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے ہنگامہ کیا۔ اسپیکر اسمبلی گڈم پرساد کمار نے ان ارکان سے بار بار اپیل کی کہ وہ ایوان کی کارروائی چلانے میں تعاون کرے۔ قطب اللہ پور کے رکن اسمبلی KP وویکانند بھی ایوان کے وسط میں پہنچ گئے تھے۔ مسلسل احتجاج اور ہنگامے کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے جگدیش ریڈی کو سارے بجٹ سیشن کے لیے ایوان سے معطل کر دیا۔ اسپیکر کے اس فیصلے کے خلاف BRS قائدین نے احتجاج کیا۔ ساتھ ہی وزیر ڈی سریدھر بابو نے کہا اسپیکر کے خلاف BRS ارکان اسمبلی کے ریمارکس قابل اعتراض تھے۔
इसलिए उन्होंने जगदीश रेड्डी को ऐवान से मुअत्तल करने की सिफारिश की, जिसे स्पीकर ने कबूल करते हुए जगदीश रेड्डी को ऐवान से मुअत्तल कर दिया। is that under sub rule 1 and rule 2 of rule 340 of the assembly rules that Sri Guntakanda Jagdishwar Reddy, member named by the speaker, be suspended from the services of the house for remainder of the session. Those who are for the motion, please say ayes. Those who are against, please say no. Ayes have it, ayes have it. The motion is carried and the member named by the speaker is suspended from the services of the house for remainder of the session. बीआरएस के सरबराह व कायद अपोजिशन के चंद्रशेखर राव ने असेंबली में पुरअमन अंदाज में कार्रवाई चलाने की हिमायत की है और उन्होंने ऐवान में हंगामा आराई करने और स्पीकर के खिलाफ रिमार्क्स करने वाले बीआरएस के अरकान असेंबली को स्पीकर से मुआवजत ख्वाही की हिदायत भी दी है। चंद्रशेखर राव ने पार्टी अरकान असेंबली पर जोर दिया कि ऐवान की कार्रवाई पुरसुकून अंदाज में चलाई जाए और इस हिदायत के ज़रिए उन्होंने ऐवान में निज़ाम बहाल करने की सिमत पहल की है। केसीआर की हिदायत के बाद साबिक़ वज़ीर जगदीश रेड्डी और दूसरे कायदीन ने कहा कि वो किसी भी गैर पार्लिमानी तबसरे के लिए स्पीकर से मुआज़रत ख्वाही को तैयार है। रियासती वज़ीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज असेंबली में बात करते हुए कहा, आज लाखों ख़वातीन आरटीसी पर ज़बरदस्त सफ़र कर रही है और हमारी हुकूमत 50 लाख ख़ानदानों को मुफ्त बिजली फराहम कर रही। हमारे पास अभी 3.5 साल बाकी है और आगे हम बहुत कुछ करेंगे। మేము చేసిన కార్యక్రమాలు లక్షల కోట్ల మంది ఇయాల ఆర్టీసీలో ఉచితంగా మహిళలు ప్రయాణం చేస్తున్నారు చూస్తలేవా 50 లక్షల కుటుంబాలకు 200 యూనిట్ల వరకు ఉచితంగా ఈ రోజు కరెంట్ ఇస్తున్న మాట వాస్తవం కాదు ఒక ఇంటికి 6-700 అంటే సంవత్సరానికి 7,000 రూపాయలు ఇయాల మిగులుస్తున్నాం ఇంకా చేసే కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడే మా సోదరుడు చెప్పినట్టు శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు 21 కోట్లు మన జిల్లాలో ఎన్ని వచ్చిన లెక్క తెలుతా ఆ సభ్యునికి 2 లక్షల లోపు మీరు లక్షనే చెప్పే 5 ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తే 20,000 వడ్డీకి సరిపోయిన అధ్యక్ష అంటే 15 ఏళ్లలో ఇన్ని చేసిన వాళ్ళం మాకు ఇంకా 3-4 సంవత్సరాల సమయం ఉన్నది ఇవన్నీ చేసి చూపిస్తాం తొందరగా పడతాం। हदबंदी को लेकर 22 मार्च को बीजेपी हुकूमत के खिलाफ तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन की जानिब से बुलाई गई मीटिंग में सीएम रेवंत रेड्डी भी शिरकत करेंगे। रेवंत रेड्डी ने जुमेरात 13 मार्च को मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हद बंदी नहीं बल्कि जुनूबी रियासतों के लिए एक हद है। इन्होंने मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ हद बंदी के नाम पर जुनूबी हिंद की रियासतों के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने फ़ैसला किया है कि रियासत तमिलनाडु के सीएम वो डीएमके के चीफ एम.के. स्टालिन की जानिब से हदबंदी के सिलसिले में 22 मार्च को रखी गई मीटिंग में शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा कि बीजेपी एनडीए की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत जुनूबी रियासतों के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। हम किसी भी कीमत पर बीजेपी को ये साजिश कामयाब होने नहीं देंगे। इन्होंने कहा कि जुनूबी रियासतों के लोग बीजेपी को कभी भी इंतखाम की सियासत नहीं करने देंगे। Bharatiya Janata Party is conspiring against southern states in the name of delimitation. Delimitation is going to limitation for south. This is not delimitation. This is limitation for south. At any cost, we are not going to accept that limitation. We are paying more tax than North India. We are more entrepreneurs. We are contributing everything for the nation. But Bharatiya Janata Party wants to settle score against South India. Why? Because South Indians are never allowed to grow Bharatiya Janata Party. Kerala, Tamil Nadu, Telangana, even Karnataka also they have defeated. They don't have any representation in Andhra Pradesh. That is why they wanted to settle a score. This is called vendetta politics. We are not going to allow government of India headed by Bharatiya Janata Party or NDA
They are conspiring against the South. I am welcoming Mr. Stalin. He has initiated this discussion. He is going to organize a meeting against all these conspiracies. Congress party in principle have agreed to attend this meeting. Then finally I have to take a permission from my high command. Then definitely I will attend that meeting. वरंगल के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कड़ियम काविया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना की तरक्की सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद ही ममनूर एयरपोर्ट को ग्रीन सिग्नल मिला है। सालों से ये एयरपोर्ट का मंसूबा इल्तवा का शिकार था, लेकिन अब मरकज़ी हुकूमत की जानिब से NOC मौसूल हो चुकी है और आने वाले बरसों में वरंगल की आवाम जल्द ही इस एयरपोर्ट से मुस्तफ़िद होंगी। MP काविया ने मज़ीद कहा कि काजीपेट कोच फैक्ट्री की मंजूरी भी सिर्फ़ और सिर्फ कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए ही मुमकिन हुई है। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और नायब वज़ीर आला మల్లు భట్టి విక్రమార్క का शुक्रिया अदा किया। కేవలం మాటల్లో చెప్పడమే కాకుండా ఏవైతే హామీలు ఇచ్చినే కాకుండా పేద ప్రజల కోసము తర్వాత ఎస్సీ బీసీ మైనారిటీ ఎస్టీ అందరికీ కూడా సమన్యాయం జరగాలి, విద్యతోటి అభివృద్ధి చెందుతారో వీళ్ళు ఈ కమ్యూనిటీస్ అన్న ఉద్దేశంతో దాదాపు 11,000 కోట్లతోటి ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకురావడం చాలా సంతోషం। అందుకు ఆయనకి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఇంకొక విషయం ఏంటంటే వరంగల్కి సంబంధించి రీసెంట్గా గత 10 ఏళ్ల నుంచి ఏదైతే ఇంకా 15 ఏళ్ళని చెప్పుకోవచ్చు, 15-20 ఏళ్ళ నుంచి మామ్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్ అసలు ముందడుగు పడలేదు। అట్లాంటిది మొన్న రీసెంట్గా మనకి నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ వచ్చింది। ఎందుకంటే ఒక క్లాజ్ 5.2 ప్రకారము గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లస్ హైదరాబాద్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ మధ్య ఉన్న ఒప్పందం ప్రకారం 150 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న ఎయిర్పోర్ట్కి మనకి ఏమంటారో శాంక్షన్ అవ్వదు। కానీ ఆ హర్డల్ని మన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రత్యేక శ్రద్ధతోటి కూడా పట్టుదలతోటి మాకు ఉన్న 5-6 కిలోమీటర్ల లోపు అంటే మాకు ఆల్మోస్ట్ 145 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది హైదరాబాద్ నుంచి, దాన్ని కూడా ఓన్లీ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తెలంగాణలోని మామ్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి ఆ నిబంధనని సడలించడం జరిగింది GMR సంస్థ వాళ్ళు। ఒక్కసారి ఆ హర్డిల్ బయటికి రాగానే మన కేంద్రం గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది। ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 950 ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ కావాలి, దాంట్లో ఆల్రెడీ 696 ఎకరాలు ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీ చేతిలో ఉంది, మిగతా 253 ఎకరాల కోసము ఇప్పుడు వెయిట్ చేస్తున్నాము। దానికోసం కూడా 205 కోట్లు విడుదల చేయడం జరిగింది సీఎం గారు। అట్లాగే కాకుండా ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఎందుకు అంటే మనకి కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఉంది, అక్కడ సౌత్ కొరియా వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా మేము ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టాలనుకుంటున్నాము, మాకు ఎయిర్పోర్ట్ సౌకర్యం కావాలి, మాకు ఎయిర్వేస్ ట్రావెలింగ్ చేస్తే మాకు టైం సేవ్ అవుతుంది అంటే ఆ ఉద్దేశంతో కొత్త ఇండస్ట్రీస్ వచ్చి అక్కడ పెట్టుబడులు పెడతాయన్న ఉద్దేశంతో వాళ్ళ కోసము ప్లస్ ఎన్నో ఏళ్ళ వరంగల్ ప్రజల కళ కోసము నెరవేర్చడానికి మామ్నూర్ ఎయిర్పోర్ట్కి గ్రీన్ సిగ్నల్ రావడము, ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ పనులు జరుగుతున్నాయి। అది కూడా దాదాపు 2 నుంచి 3 సంవత్సరాల లోపు ఎయిర్పోర్ట్ పూర్తి స్థాయిలో నిర్మించబడుతుంది అని మీకు అందరికి తెలియజేసుకుంటున్నాను। ఎంపీలము కలిసి మన కేంద్ర రైల్వే మంత్రి గారిని కలిసి కాజ్పేట్కి డివిజన్ ఇవ్వడం అని కోరడం జరిగింది। ఎందుకంటే సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణకు సంబంధించి ఒక 2 డివిజన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి। ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన సౌత్ కోస్ట్ రైల్వేకి మిగతా ఆంధ్రాలో ఉన్న 5 డివిజన్స్ వెళ్ళిపోయినందుకు కాజ్పేట్కి కూడా అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయన్న ఉద్దేశంతో కాజ్పేట్ని డివిజన్గా చేయాలని కోరినాము। అదేవిధంగా కొత్త రైల్వే ప్రపోజల్స్ ROBలు RUBలు అన్నీ కూడా కోరితే చాలా సానుకూలంగా స్పందించినారు। ఇవే కాకుండా రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్క సమస్య మీద కేంద్ర మంత్రులని ముఖ్యమంత్రితో పాటు కలవడమే కాకుండా మేము సపరేట్గా కూడా కలిసి విన్నవించుకోవడం జరుగుతుంది। अपने मुतनाज़ा और इश्तियाल अंगेज़ बयानात के लिए मशहूर रिसवाए ज़माना रुकन असम्बली राजा सिंह ने अब खुद अपनी ही पार्टी BJP के सीनियर कायदीन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन पर हुकूमतों के साथ खुफिया ताल्लुकात का इल्ज़ाम आयद किया है। राजा सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के ही सीनियर कायदीन को निशाना बनाया और कहा कि BJP के कुछ कायदीन
ایسے ہے جو تلنگانہ میں جو کوئی بھی حکومت میں آتی ہے اس کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ملون رکن اسمبلی نے سوال کیا کہ ایسا کرنے سے تلنگانہ میں بی جے پی کی حکومت کیسے بن سکتی ہے۔ رکن اسمبلی نے دعویٰ کیا کہ شکایت صرف انہیں ہی نہیں بلکہ بی جے پی کے ہر کارکن اور لیڈر کو بھی ہے، جو پارٹی کی قومی قیادت کو اس کا نوٹ لیتے ہوئے کارروائی کرنی چاہیے۔ تلنگانہ میں شدید گرمی کی لہر کے پیش نظر حکومت نے اسکولوں کے اوقات میں تبدیلی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں حکومت نے 15 مارچ سے ہاف ڈے اسکول شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق 15 مارچ سے تمام اسکول صبح 8 بجے سے دوپہر 12:30 بجے تک ہی کھلے رہیں گے۔ اس کے بعد طلباء کو مڈ ڈے میل فراہم کیا جائے گا، جس کے بعد چھٹی دے دی جائے گی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے زیر اہتمام شہر و مضافات کے امام و مؤذنین، جن کی تنخواہیں 5 تا 8 ہزار روپے، دوسرے مرحلے کے تحت ان امام و مؤذنین کو راشن کٹس تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر مولانا محسن پاشا، مولانا لال اعظمی، مولانا ریاض الدین نقش بندی، مولانا رشید الدین، محترمہ عظما شاکر موجود تھی۔ آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی جانب سے الحمدللہ آج 7-8 سال سے ہر سال ریاست کے شہر حیدرآباد اور قریبی موازیات مضافات کے علاقوں میں جہاں پر رنگا ریڈی ضلع کے کئی ایسے موازیات ہیں جہاں پر ائمہ مؤذنین کو 5,000 6,000 4,000 روپے جو نا ان کو ماہانہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو ایسے مساجد کی ہم نشاندہی کرتے ہوئے الحمدللہ ہر سال اہل خیر حضرات کے تعاون سے مدد سے ہم ان کو راشن کٹس دیتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ پہلے مرحلے میں 120 ائمہ مؤذنین کو دیے گئے، یہ دوسرا مرحلہ میں جو نا 100 جو نا ہوئے ہیں، اور ایک مرحلہ ہے انشاءاللہ تعالی اس میں ماباقی اور کئی درخواستیں ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں۔ اگر اتنی گنجائش ہوتی تو آج ان کو بھی بلا لیتے تھے، لیکن اتنی گنجائش نہیں تھی۔ ہماری کوشش جاری ہے، اور میں اس موقع پر تمام اہل خیر حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے امام اور مؤذن ہمارے مساجد کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے امامت کرتے ہیں، ہمارے نمازوں کا دار و مدار ان پر ہوتا ہے۔ اگر ان کے خیالات منتشر ہوں گے تو ہماری نماز کی قبولیت کا کوئی وہاں پر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صرف ہم کو خوش ہو جانا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے آ گئے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ امام کا جو ہے نا دماغ جو ہے نا بالکل ایک سو رہنا چاہیے، وہ خشوع خضوع سے نماز پڑھانا چاہیے، اور وہ خشوع خضوع اس وقت ہی ہو سکتا ہے جب اس کے گھر میں کوئی تکلیف و پریشانی نہ ہو۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے چیئرمین صاحب کی ہماری ایک میٹنگ تھی وقف بورڈ میں، چیئرمین صاحب کے چیمبر میں کئی ہمارے ائمہ مؤذنین جو ہے نا آئے ہوئے تھے، تو ایک امام صاحب کھڑے رہ کر چیئرمین صاحب کو بول دیے کہ چیئرمین صاحب ہمارا یہ حال ہے، ہم رکعت باندھتے ہیں تو پورا گھر کا خیال آتا، قرضداروں کا خیال آتا، بیمار بچوں کا خیال آتا، اور یہ حکومت سے جو مدد ملتی تھی وہ بھی نہیں مل رہی، تو ہم کریں تو کیا کریں۔ یہ چیئرمین صاحب کے سامنے کئی علماء کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ کہا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہمارا امام اتنی مفرق الحال میں زندگی گزارے اور ہم یہ سمجھ لے کہ ہماری نماز قبول ہو گئی۔ ہاں، یہ بڑی بدبختی کی بات ہے۔ تو میں تمام شہر کے اہل خیر حضرات سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ زکوٰۃ، فطرہ اور فدیہ جو لوگ روزے نہیں رہ رہے، اس سے بڑھ کر آپ کے روزے کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ ایک عالم، ایک حافظ کو آپ جو نہ دے رہے ہیں، ہاں، جو دین کی خدمت کرنے والا ہے، جو امام، جو مؤذن ہے، اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا ہے، اگر ویسے کہ آپ جو نا مدد کریں گے تو یقیناً آپ کا جو نا روزے کا بدل بھی ہوگا اور کئی گنا اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب دے گا۔ بس میں یہ امید کرتا ہوں ہمارے شہر کے اہل خیر حضرات سے کہ اس کار خیر میں آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ بلیٹن میں فی الحال وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، مزید خبریں دیکھیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए देखते हैं मजीद खबरें। शहर हैदराबाद में रमज़ान की रौनकें अज़ला के साथ साथ मुल्क भर में मशहूर है। नाजरीन, इन रौनकों से आप भी पुरलुत्फ़ हो, इसके लिए BBN चैनल की जानिब से हर दिन ख़ास रिपोर्ट पेश की जा रही है। रौनक रमज़ान अल मुबारक पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की खुसूसी रिपोर्ट। रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर देखा जाता है कि अपने अपने जो ख्वाहिशात रहते हैं लोगों को हरीस का एक मज़ा लेने के लिए यहाँ पर जो हैदराबाद में आते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि हैदराबाद ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में मशहूर एक पिस्ता हाउस के नाम से जो हलीम जाना जाता है, कि उसी के हम शालीबंडे में यहाँ पर मौजूद है। आइए कुछ जानते हैं लोगों से कि किस तरीके से आपको लग रहा है सर यहाँ पर रमज़ान और ये हलीम का टेस्ट है। ये हलीम है पिस्ता हाउस का, एक नंबर क्वालिटी का है। ये हम खाने के लिए 200 किलोमीटर से आया है, 200 किलोमीटर से आया है। कहाँ पर? वरंगल से आया है हम। ये पिस्ता हलीम का टेस्ट करने के लिए इधर आया है। एकदम बढ़िया है और मशहूर है, टेस्ट में भी वाकिफ है। सर पहली मर्तबा आए हैं आप या? नहीं, हम हर साल आते, ऐसा हर साल आते, रमज़ान के महीने में हर साल आते खाने के लिए। एकदम है, बढ़िया है। सर आप बताइए, हमारे आप बताइए कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? आपको अच्छा लग रहा भाई? कैसा बोल अच्छा लग रहा। मैं कितने मर्तबा आए हैं? मैं 10 साल से आ रहा हूँ। हर रमजान में? हर रमजान में कभी 2 बार आते कंपोजर। रमजान में 2 बार आते हैं? 2 बार आते कंपोजर। हमेशा वही टेस्ट है? हमेशा वही टेस्ट है। हमारा पास भी पिस्ता हाउस का क्या बोलता है अभी ब्रांच है। वहाँ से यहाँ वाकिफ है। हम पार्सल भी लेके जा रहा है। हमारा गांव में भी है पिस्ता हाउस, पर वहाँ से यहाँ टेस्ट अच्छा रहता है। टेस्ट के लिए यहाँ इतना दूर आना पड़ रहा। क्या कहेंगे पिस्ता हाउस के ओनर माजिद साहब के? मस्जिद साहब के लिए उन अच्छा नेक काम कर रहा और अच्छा टेस्ट खिला रहा, उन अच्छा रहना बस। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट सिरपुर कागज़नगर से ख़ास तौर पे पिस्ता हाउस की हलीम खाने के वास्ते आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, पिस्ता हाउस की हलीम का ऐड मैं बहुत बार BBN चैनल पे देखा हूँ और BBN चैनल पे भी इसका बहुत अच्छा कवरेज रहा, तो उस वजह से हम लोग देख के यहाँ पर ख़ास तौर पे हम लोग 4-5 दोस्त थे, आज कार लेके यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है पिस्ता हाउस का, जैसा एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उसका वैसी बेहतरीन टेस्ट है। ख़ास तौर पे रमज़ान में हम लोग हलीम खाने के लिए हैदराबाद पहुँचे, सिरपुर कागज़नगर आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट से। साबिक़ चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटी कमीशन इम्तियाज़ इसहाक ने बात करते हुए तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल पर तनकीद की। उन्होंने अब्दुल्ला कोतवाल की जानिब से साबिक़ वज़ीर हरीश राव पर तनकीद की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि BRS ने अपने दौरे हुकूमत में एक अक़लियती वज़ीर और कई चेयरमैन दिए हैं, जिनमें एक MLA, एक MLC भी शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता 1.5 साल में तेलंगाना माइनॉरिटी कॉरपोरेशन में एक भी काम नहीं हुआ। वालेकुम, मैंने आज एक मीडिया में देखा जनाब उबैदुल्ला कोतवाल साहब माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने हरीश राव साहब के खिलाफ एक बयान दिया कि हरीश राव साहब जो है चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन करो बोल के बोले, कैसा बोलते, और जो है TRS पार्टी खाली तेलंगाना मूवमेंट की पार्टी है, फलां है बोल के बोले। तो मैं कोतवाल साहब को ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये वही हरीश राव साहब है जो तेलंगाना लाने के लिए जिद्दोजहद करके तेलंगाना लाए। तेलंगाना लाने के बाद 10 साल जो है एज हरीश राव साहब जो काम करे, आपके सामने 100 गिना के बताता हूँ मैं, आप देख लीजिए हरीश राव साहब की जो काबिलियत है। हरीश राव साहब एक ऐसी शख्सियत है कि वो जो भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वो डिपार्टमेंट के तहत गरीब आवाम को कई स्कीमात लाते हैं। उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर है कि जो है ऐसे कई स्कीमात लाए, जैसे न्यूट्रिशन किट हो या चाहे KCR किट हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो है हरीश राव साहब, KCR साहब की सदारत में हरीश राव साहब ने काम किया। और रही बात आज रेवंत रेड्डी जी को रिज़ाइन करो बोल के बोलना, हरीश राव साहब जो बोल रहे हैं, हरीश राव साहब से ज़्यादा आपके पार्टी में बोल रहे हैं बड़े लोग आके रेवंत रेड्डी को रिज़ाइन कराना बोल के। हल्के याकुतपुरा के हुदूद में इतवार के रोज़ एक ऑटो और बाइक के दरमियान सड़क हादसा पेश आया। इलाज के दौरान ऑटो ड्राइवर की मौत हो गई। इस सिलसिले में हल्के याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज और MLC रियाजुल हसन अफांदी ने रैन बाज़ार के पुलिस स्टेशन पहुंचकर SHO पर जोर दिया कि इस सिलसिले में वो गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करके मुनासिब कार्रवाई करे।
नगर याकुतपुरे में एक वाक़या पेश आया। जैसे ही इत्तला मिली, नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से कहा मुझे और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब और अलमदार वालेजाई साहब कारपोरेटर और जनाब वासिफुद्दीन साहब जाइए, जाके क्या मैटर है उसकी इंक्वायरी करिए। हमने इंक्वायरी किया तो पता चला कि इतवार के दिन क्लासिक आइसक्रीम के पास में जो हादिसा पेश आया, जिसका नाम है कौकब अली, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर थे, उनके ऑटो से कोई बाइक वाले का बाजू दब गया, जिसमें दोनों में आपस में बहस और तकरार हुई और आपस में झगड़ा हुआ। उसके बाद में दोनों रफा दफा कर लेके अपने अपने मकान चले गए। दूसरे दिन कौकब अली साहब की कुछ तबीयत नासाज हुई तो उन्होंने जाके असरा हॉस्पिटल में एडमिट हुए। एडमिट होने के बाद वहाँ पे मुआयने इंस्पेक्शन चल रहा था। आज पता चला कि मगरिब के असर और मगरिब के बीच में कौकब अली का इंतकाल हो गया। उनके फैमिली मेम्बर्स का कहना ये है कि भाई उनकी तबीयत बराबर नहीं रहती थी, जिसके तरफ से शायद ये वाक़या पेश आया है। मगर हमारा काम है, हम पुलिस को यही कहें कि भाई आप प्रॉपर इंक्वायरी करना बेइंतहा ज़रूरी है, चाहे कोई भी रहने दो, जान तो जान है, किसी की भी रहने दो। और कौकब अली के 3 मासूम बच्चे हैं और उसके लिए हमने ख़ुद इमीडिएट न सिर्फ रैन बाज़ार पुलिस स्टेशन आया, इंस्पेक्टर को साथ लेकर कौकब साहब के घर गए। जाने के बाद हमने पूरी तफसीलात हासिल किए। उनके वालिद, 2 भाई, बहन भाई और बस्ती के ज़िम्मेदारों को बुला के इंस्पेक्टर साहब से बात करवाए हैं। हम इंशाअल्लाह ताला फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसा भी रहेगा कराएंगे। अगर कोई इसके अंदर इन्वॉल्व है या उसके मार से अगर कुछ होगा तो उसके ऊपर बराबर पूरी क़ानूनी कार्रवाई भी होंगी और जैसा भी होगा उसके ऊपर केस बुक कराएंगे और आगे की कार्रवाई के लिए उनके घर वालों से मशवरा करके जैसा करने का है काम करेंगे। संगारेड्डी के ज़िले सदासवी पेट पुलिस की जानिब से होली त्यौहार और माह रमज़ान मुबारक और जुमा के पेश नज़र पीस कमेटी मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें दोनों फरीक़ैन पीस कमेटी के अरकान ने शिरकत करते हुए पुलिस को यकीन दिलाया त्यौहारों के पुरअमन इख्तिताम के लिए पुलिस का भरपूर ताउन करेंगे। అక్కడ వాస్తవానికి పెద్దలు అట్లా 30 ఏళ్ల నుంచి ముందు నుంచి కూడా పెద్దలు అట్లా నడిపించారు. అన్ని వర్గాల వారు ఏకమై ఒకరికొకరు తోడ్పాటు ఉంటూ చాలా మంచి రిలేషన్ తోటి మెయింటైన్ చేస్తుంటారు. అది బయటకి కనిపించదు. కాబట్టి వీలైనంత వాటికి నన్ను ఇప్పుడు పర్మిషన్ ఇవ్వాలన్నా ఎస్పెషల్లీ సదాశివపేట సిఐ పర్మిషన్ అడగాలంటే ఎస్పీ గారిని అడగాలి, ఊరికే పంపరు. టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్, సంగారెడ్డి టౌన్ ఇన్స్పెక్టర్ కూడా ఎస్పీ గారిని అడగాలి, అది కూడా అవసరం ఉండి పంపుతలేదు. ఇప్పుడు నేను ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు 10 రోజులు అవుతుంది నేను ఇంటికి అంటే పోగా, నేను ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి అసలు వెళ్ళక. అంటే అట్లా ఈ ఇక్కడ అంటే డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీ అంతా ఉంటారు కాబట్టి సంథింగ్ ఏదో అన్నట్టుగా మన ఓల్డ్ సిటీలో టైంలో ఫేరప్ చేస్తారు. కానీ ఇక్కడ రూరల్ ఏరియాలో ఉన్న ఈ రిలేషన్స్ అది దాంతో వీరంత బట్టికి పెద్ద అట్లా కాపాడుకుంటూ వచ్చారు. వాస్తవానికి ఈ మధ్య ఏమవుతుందంటే మన ప్రతిదీ మారేది, ఈ మన సిస్టమ్ కూడా మారుతుంది. కానీ ఏది మారినా కూడా ఒకటి దాని మీనింగ్లో ఉంది, శాంతి సమావేశం. శాంతి అంటే మనిషి నుంచి స్టార్ట్ అయితే మనిషిలో ఫస్ట్ శాంతి. మనిషిలో శాంతి ఉన్నప్పుడు మన మనిషిలో అనేది శాంతి స్వభావం అనేది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా మన చుట్టూ నేను పనిచేసే పనిలో నా చుట్టూ నా ఆఫీస్లో, నా ఆఫీస్ కాకపోతే మన ఊరిలో, మన కాలనీలో, మండల్లో, దీని మించి ఒక మండలంలో శాంతి ఉంటే జిల్లాలో। आदिलाबाद के समाजी कारकुन एम मुनीश रेड्डी ने भुरज मंडल के मरकजी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली 8 साल निमला अबीद को आतिज़दी के हादसे में ज़ख्मी होने पर उनकी इयादत की और 5,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। बादज़ा उन्होंने जेत मंडल के किरनजी गाँव के खमगरी वटल की इयादत की और 5,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की। उनके हमरा गांव के लोग अशोक रेड्डी, महेश यादव, वेंकट रेड्डी व दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद ज़िले मुस्तक़र में क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए बनाए जाने वाले
सेल टावर की तामीर को रोकने के लिए मुकामी लोगों ने हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़र के न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जुबली हिल्स कॉलोनी में सेल टावर की तामीर को रोकने के लिए मुकामी लोग पिछले 2 दिनों से गैर मियाना मुद्दत की हड़ताल पर चले गए। टेंट लगाकर टावर की तामीर को रोकने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। जुबली हिल्स कॉलोनी के मकीनों ने वार्ड नंबर 12 के साबिक़ कौंसलर मुतालिका हुकाम से सेल टावर्स की तामीर को फौरी तौर पर रोकने और टावर के मालिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने इंतबाह दिया कि टावर की तामीर ना रोकी गई तो हम बड़े पैमाने पर एहतजाज करेंगे। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों के रिहायशी मौजूद थे। నిర్మాణం జరుగుతుంది। ఆ సెల్ టవర్ నిర్మాణం పక్కకి చిన్నపిల్లల ప్లే స్కూల్ ఉంది, దానికి దగ్గరలోనే దేవాలయం ఉంది। ఇది రెసిడెన్షియల్ ఏరియా కనుక ఈ సెల్ టవర్ నిర్మాణం ఇక్కడ నిర్మించరాదు। జీవో నెంబర్ 5 ప్రకారం ఇక్కడ ఈ రెసిడెన్షియల్ ఏరియాలో కానీ స్కూల్ ఉన్న చోట కానీ దేవాలయాలు ఉన్న చోట కానీ ఈ సెల్ టవర్ నిర్మాణం చేయకూడదని జీవోలో రాసిపెట్టి ఉంది। మరి అట్లాంటి జీవోలు ఉన్నప్పుడు రూల్స్కి విరుద్ధంగా ఇట్లాంటి సెల్ టవర్ నిర్మాణం చేయొద్దు కదా। రూల్స్ అందరికీ రూల్స్ పాటించాలి కదా। రూల్స్ అన్న తర్వాత వాటికి విరుద్ధంగా నిర్మాణాలు చేపడితే ఇక్కడ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు, వృద్ధులు ఉన్నారు, గర్భిణులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి అనారోగ్యమైన రాకుండా ఉండడానికే కదా మేము ఇంత దూరం వచ్చి సిటీకి దూరంగా ఇల్లు కట్టుకొని ఇక్కడ ఇలాంటి చోట మేము ఇల్లు నిర్మాణం చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి సెల్ టవర్ నిర్మాణం చేస్తే మేము ఎంత దూరం వెళ్తాం కనుక వెంటనే యాజమాన్యం దిగి వచ్చి మాకు వ్రాతపూర్వకంగా ఈ సెల్ టవర్ నిర్మాణాన్ని ఆపేసినామని వాళ్ళు మాకు వ్రాతపూర్వకంగా రాసి చూపెట్టాలి, నిర్మాణాన్ని ఆపేయాలి। हल्का असम्बली नामपली के इलाके मेहदीपट्टनम में सेंट एन्स कॉलेज के सामने एक हॉस्टल में लिफ्ट में फंसने से 5 साला लड़के की मौत हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही मजलिसी लीडर डॉक्टर कासिम ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर लड़के के घर वालों से मुलाकात की और हॉस्टल के इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ लापरवाही पर कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। लड़के को पहले अस्पताल ले जाया गया, फिर उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में एक नामालूम झगड़े में एक 62 साला दुकानदार जाकिर खान नौजवान के हमले के बाद जाँ बहक हो गए। मुतवफ़्फ़ी शख्स जाकिर खान जो हैदराबाद पुराने शहर के इलाके हाफिज़ बाबा नगर सी ब्लॉक में किराए की दुकान चलाते थे। उनका करीबी पान शॉप मालिकान के साथ दुकान के सामने कुर्सियां रखने पर तनाज़ा हो गया था। तल्ख़ कलामी के दौरान पान शॉप के नौजवान मालिकान ने मुबैना तौर पर जाकिर खान को पीटा, जिसके बाद जाकिर खान बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। कंजनबाग पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। माह रमज़ान में पेश आए इस वाक़े से मकामी अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। मकामी अफराद मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। करीमनगर के एक जूनियर कॉलेज में इम्तिहान के दौरान पंखा गिरने से इंटर साल दोम की तुलबा हादसे का शिकार हो गई। इम्तिहान के दौरान कमरे में लगा छत का पंखा अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी एक प्लेट तुलबा के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी नाक और आँख के नीचे के हिस्से में ज़ख्म आए। तब उस तुलबा को फौरी इब्तिदाई इलाज करते हुए दूसरे कमरे में बिठाकर इम्तिहान मुकम्मल करने के लिए इजाफी 30 मिनट दिए गए। तेलंगाना में एक ऐसा भी गांव है जहां 40 साल से शराब पर पाबंदी है। ये पाबंदी हुकूमत ने नहीं बल्कि गांव की आवाम ने ही लगाई है। आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। आज के ऐसे दौर में जहां शराब नोशी आम है और हर उम्र के लोग शराब की लानत का शिकार होकर अपनी और अपने ख़ानदान की ज़िंदगियों को बर्बाद करने से गुरेज नहीं करते, वहीं तेलंगाना में एक गांव ऐसा भी है जहां गुज़िश्ता 40 सालों से शराब पर पाबंदी है। ये पाबंदी हुकूमत से नहीं बल्कि गांव के अवाम ने ही लगाई है और गुज़िश्ता 4 दहाकों में इस पाबंदी को बरकरार रखा गया है। कुत्तागुड़म ज़िले के दोमाईपेट मंडल में रामाराव पेट ऐसा गांव है जहां गुज़िश्ता 40 बरस से शराब की फ़रोख्त और इसके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। यहाँ के अवाम आज भी इस पाबंदी को बरकरार रखे हुए हैं और इस पर अमल करते हैं। यहाँ शराब, गुड़म्बा और
ऐसी दूसरी तमाम नशा आवर अशिया पर पाबंदी है। यहाँ के लोग 4 दहों से जारी पाबंदी को बरकरार रखे हुए हैं। इसी तरह की पाबंदी अगर हमारी रियासत तेलंगाना के हर गांव में आयद कर दी जाए तो कई ख़ानदानों को तबाही से बचाया जा सकता है। महंगाई के इस दौर में सिर्फ 1 रुपए में खाना, आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। एक ऐसे वक्त में जब आज सारी दुनिया महंगाई की वजह से परेशान है और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होने लगे हैं, क्या ऐसे में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि महज 1 रुपये में पेट भर खाने को मिल जाएगा? शायद आपको यकीन ना करें, लेकिन ऐसा मुमकिन है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से खदीम मनोहर टाकिस की गली में जाते हुए आपको एक स्टॉल पर तवील कतार दिखाई देगी। ये लोग कोरोना किचन पर कतार बनाए हुए होते हैं, जहां सिर्फ 1 रुपये में इन्हें खाना फराहम किया जाता है। यहाँ ज़्यादातर उड़ीसा, बिहार और मगरबी बंगाल से आए मज़दूर खड़े होते हैं। इसके अलावा तेलंगाना के मुख्तलिफ़ अज़ला से आने वाले अफराद भी महज 1 रुपये में इस ग़िज़ा से अपना पेट भरते हैं। ये किचन 1 माह कबल शुरू किया गया था और अब यौमिया तकरीबन 300 अफराद इसके ज़रिए अपना पेट भर रहे हैं। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। तेलंगाना असेंबली के पहले ही रोज ऐवान में खूब हंगामा। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने कहा, ये ऐवान सबका है, ना कि सिर्फ स्पीकर का घर। कांग्रेस ने मचाया हंगामा। असेंबली में जबरदस्त हंगामा। जगदीश रेड्डी का स्पीकर पर जानिबदारी का इल्जाम। स्पीकर के खिलाफ रिमार्क्स पर बीआरएस रुकन असेंबली मुअत्तल। बीआरएस अरकान असेंबली स्पीकर से करे मुअज़्ज़त ख्वाही। बीआरएस सुप्रीमो केसीआर की हिदायत, पुरअमन अंदाज में असेंबली की कार्रवाई चलाने की हिमायत की। ये हदबंदी नहीं बल्कि जुनूबी रियासतों के लिए एक हदबंदी को लेकर सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क। हदबंदी के खिलाफ तमिल सीएम स्टालिन की मीटिंग में शिरकत का किया ऐलान। राजा सिंह ने खुद अपने ही पार्टी के सीनियर कायदीन को बनाया निशाना। बीजेपी सीनियर कायदीन पर हुकूमतों के साथ खुफिया ताल्लुकात का लगाया इल्ज़ाम। बुलेटिन में फ़िलहाल बस अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BBN चैनल।